Hello and welcome back everyone to our YouTube channel. In today's video, we'll be we'll be looking after the application form of CAT 2021. So without any further delay, let's hop into the session. As you already know that the CAT 2020 forms are out from 4th of August and the end date is 15th September. So you are required to fill the form within this time frame. So many aspirants ask certain questions like I'm not able to fill my percentage, my 10th and 12th percentage correctly. It is showing an error, or which all colleges, which all programs, which all IIM programs basically do I need to fill based on my profile? So these all questions will be answered in this video. Okay, so the main website is iimcat.ac.in. You just need to go to iimcat.ac.in. Here you will see some windows like new candidate registration, registered candidate login. CAT 2020 scorecard is not useful for you guys, I guess. So the first thing you need to do is do a new candidate registration. Just click on this. And here you will see some notification. Just close it. Look, one thing you need to be aware of is that the basic details like your application, your name, your date of birth, your mobile number, your email address, these all things must be with you all the time. Why? Because these are the things that will these things serves as the communication part between you and the IIMs or other B schools, right? So make sure you fill the email IDs and your mobile number that is correct, that is with you. Okay, so this is the notification that they've recently put it on. So during the registration process, there are some basic details like name of the candidate, date of birth, your email ID, confirm your email ID, country, mark as India if you are an Indian or others, in case others, mobile number, confirm your mobile number, and then after putting your mobile number, you need to generate an OTP. After getting the OTP, you just have to validate the OTP, and after validating, you just need to type in the CAPTCHA given below, click on I agree, and then submit. After submitting, you will receive a message and an email on your registered mobile number and email ID respectively, which will be having your registration number, your CAT registration number, and secondly, the password, the auto-generated password. So these two things will be required in case you need to re-log in again at certain point of time. Okay, so make sure these two things will make sure to save these two things. Okay, your registration number and your password. So what I've done is I've already created my login. So I'll just put in my details and will let you know about the further process. Just give me a second, guys. I've typed in my registration user ID and password. Now CAPTCHA, login. So as you can see, I have entered into my dashboard. User ID and password has been sent on your registered email address and registered mobile number. Overseas candidate. Okay. So here you are required to fill. Look, these all are personal things that you have previously filled. Your user ID is your user ID, basically that that this portal has generated. Okay, your name, your birth date, country, email ID, contact number. Okay, all these things are pre-filled. Just go to application form. After clicking on go to application form, you will be seeing some details, right? Like your personal details. The first section, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 step. The CAT 2021 application form is a 6-step process. The first step is your personal details. You just need to type in all the details. I don't think I need to tell you about how to fill your address, your contact number, your details, and as well. Okay, so just fill in these things. After that,
you are required to upload your signature, your e-copy of signature plus your photo. So here you are required to upload your signature as well as photograph. So when you click here, it will ask for a photograph column. Here you are required to browse. You can browse it from your computer, and there are some information that has been presented with us. Okay, like please upload your recent passport size photograph. Photograph should not be more than 6 months old. Photo print should be clear. ठीक है, बेसिक मतलब ऑफ वाइट बैकग्राउंड जो इसमें चाहिए रहता है हमें, दैट इज ऑफ वाइट बैकग्राउंड इज सूटेबल. तो अगर आप लोगों का बैकग्राउंड रेड या किसी भी और रंग बिरंगा बैकग्राउंड है तो उसको प्लीज ट्राई करिएगा कि कन्वर्ट कर लें. बैकग्राउंड रिमूवल इमेजेस बहुत सारी होती हैं, वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. मेक श्योर योर फेस इज योर आईज आर डायरेक्टली लुकिंग एट द कैमरा, नो टिल्टिंग फेस एंड ऑल दीज थिंग्स. Okay, maximum file size is 1 MB. Only 2 file formats are supported, JPEG and JPG. Okay, so these all things are required. One more thing is जो भी आप लोग अपनी फोटो अपलोड करोगे इसके अंदर, वही फोटो आपके एडमिट कार्ड पर भी लगी होनी चाहिए. व्हेनेवर जब अपना एडमिट कार्ड इसका रिलीज होगा 27 अक्टूबर को, तो उसमें एक फोटो हमारी रहेगी जो हमने इसमें अटैच करी है, एंड सेकेंड फोटो विल बी जो हम लगाएंगे, और वो फोटो दोनों की दोनों मैच होनी चाहिए. तो मेक श्योर जो आप फोटो इसके अंदर अपलोड कर रहे हो उसका प्रिंट लेके जरूर रखना. ओके, उसका एक हार्ड कॉपी अपने पास होनी चाहिए. तो ये थी बेसिक डिटेल. तो फोटोग्राफ इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे, उसके बाद सिग्नेचर ऐड कर देंगे. यहाँ से दोनों चीजें ऐड करनी है. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ फोटोग्राफ ऐड करी एंड देन आगे मूव ऑन कर जाते हैं. ऑल्दो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा अगर अपन ने कोई भी एक चीज फिल नहीं करी हुई है, बट स्टिल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों अपन अपलोड करेंगे. अपलोड करने के बाद वी विल सेव एंड कंटिन्यू. जस्ट चेक, गो थ्रू वंस अगेन कि अपन ने सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करी हुई हैं. डबल चेक ऑल द डिटेल्स एंड देन save and continue. Next part, the second part is your academics. Okay, so यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से. मीनिंग अपन देखो 10th और 12th की अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो पहले कैट में ये हुआ करता था कि 10th के अंदर बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स लिए जाते थे एंड 12th के अंदर ऑल सब्जेक्ट्स लिए जाते थे. लेकिन इन्होंने पिछले साल से थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं, और वो चेंजेस क्या किए हैं इन्होंने कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट पर हैं, वेदर इट इज 5, वेदर इट इज 6, वेदर इट इज 7, साउथ में जो अपने बोर्ड है उसमें 7 सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और हो सकता है आपके भी हों 7 सब्जेक्ट्स. तो अपन को सिंपल क्या करना है, 7 सब्जेक्ट्स बेस्ट बोले तो 100 मार्क्स के अगर 7 सब्जेक्ट है तो हमें मैक्सिमम मार्क्स 700 यूज करने होंगे. 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट से अगर आपके मार्कशीट में प्रेजेंट है तो 500 अपन को मैक्सिमम मार्क्स लेके चलने होंगे, या फिर 450 अगर आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड के हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स कितने ही बैठ रहे हैं. मेन मुद्दा ये है बताने का, मेन जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 को ही कंसीडर करेंगे, अगर 6 है तो 6 को कंसीडर करेंगे, 7 है तो 7 को कंसीडर करेंगे. ओके, सो जैसे कि मेरा मार्कशीट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ, अभी कुछ भी कर देता हूँ. जनरली मई में पास आउट होते हैं अपन लोग, 2013 कर देते हैं. चलो, मैक्सिमम मार्क्स मेरी मार्क्स शीट में मान लीजिए 500, 5 सब्जेक्ट से 500 मार्क्स मैंने टोटल. एक चीज ध्यान रखना, बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे परसेंटेज जो होता है हमें पुट करना होता है, मैक्सिमम मार्क्स हमें पुट करने होते हैं, टोटल मार्क्स हमें पुट करने होता है, एग्रीगेट परसेंटेज भी हमें खुद से ही कैलकुलेट करके पुट करने होते हैं. तो इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान देना इसको फिल करते समय कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम मार्क्स भरने हैं, मतलब टोटल मार्क्स नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे. टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर आएंगे, मतलब 500 में से अगर मैंने 450 स्कोर किए होते तो मैं टोटल मार्क्स यहाँ लिखूंगा एंड मैक्सिमम मार्क्स यहाँ लिखूंगा. इसके रिस्पेक्टिवली मेरी परसेंटेज बनेगी 90%, तो मैं 90% यहाँ फिल कर दूंगा. अब मेन चीज जो दिक्कत आती है वो आएगी CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करने में. अब देखिए गाइस, CGPA को अगर आपका रिस्पेक्टिव कोई बोर्ड है, जैसे CBSE बोर्ड है, CBSE ने सिंपल क्लियर कट बोला हुआ है कि अगर आपके इतनी CGPA है तो आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका डायरेक्टली परसेंटेज में वो कन्वर्जन हो जाएगा. बाकी अगर आपके रिस्पेक्टिव किसी भी बोर्ड ने अपना डिक्लेरेशन ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आपके वाइल कैलकुलेटिंग योर फाइनल परसेंटेज आपको कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो इन जनरल IIM ने बोला हुआ है कि आप 100 से उसको मतलब 10 CGPA 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9.5 की जगह. ओके,
तो मतलब ये है कहने का कि अगर मान लीजिए मेरी 9 CGPA थी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मल्टीप्लाई अगर अपना CGPA 9.5 अपना अलाउ करता है अपना बोर्ड, तो अपन सिंपल 9.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आई गेस इट इज क्लियर नाउ। अब जैसे कि मेरे पास मान लीजिए मेरा CGPA बना था 8.4, मेरे टोटल सब्जेक्ट्स थे 6, तो व्हाट आई विल डू इज मैं 8.4 को 9.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे मेरी क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ जाएगी, दैट इज 80.75। अब अगर आपने अपने फॉर्म में देखा होगा तो इसमें हमें 3 चीजें चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए एंड टोटल मार्क्स चाहिए, राइट? तो अब मेरे पास परसेंटेज कैलकुलेट हो गई है। अब परसेंटेज कैलकुलेट हो गई है, मेरे को सब्जेक्ट्स पता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं टोटल मार्क्स भी निकाल सकता हूँ। टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे? मेरी जितनी परसेंटेज थी उससे मैं 6 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मेरे 6 इज नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तो आप देखेंगे मेरे 484.5 मार्क्स बने। अब क्योंकि कभी भी एग्जाम में अगर आपने देखा होगा तो पॉइंट्स में अपने को मार्क्स अलॉट नहीं किए गए हैं, और ये फैक्टर इस वजह से आया है क्योंकि अपन ने 9.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और CGPA भी 8.4 था, राइट? हो सकता है इसमें आपका राउंड ऑफ आ जाए, 485 पहले ही आ गया होता, लेकिन इन केस अगर अपना नहीं आया है, 484.5 आ रहा है या और भी कुछ आ रहा है, तो उसको अपन नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब 484.5 बन जाएगा अपना 485। तो अब सबसे पहली चीज मैं आपको एक ट्राई करके दिखा देता हूं कि अपन ने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया 485। तो मैं अगर फॉर्म फिल करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स हो गए मेरे 600, मेरे टोटल मार्क्स कितने थे? मेरे टोटल मार्क्स बने थे 485, राइट? 485, और मेरी परसेंटेज थी जो मेरी निकली थी वो थी 80.75। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे फिल करूंगा 80.75 तो ये एरर दिखा देगा। एरर क्यों दिखाया? क्योंकि 80.75 मार्क्स आए थे 484.5 के हिसाब से, और क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया है तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा, वो क्या कि मुझे 485 मार्क्स के हिसाब से अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है, अगर अपना राउंड ऑफ अपने को करना पड़ रहा है तो 485 का अब 600 में से मैं क्या निकालूंगा? अपनी रिक्वायर्ड परसेंटेज की। तो मेरी अगर 600 में से अगर मेरे 485 मार्क्स आए होते तो मेरी कितनी परसेंटेज बनती? तो मेरी परसेंटेज बनती 80.83। तो अब मुझे जो फाइनल अपनी परसेंटेज फिल करनी है दैट वुड बी 80.83, ना कि 80.75। तो मेरी जो नई वैल्यूज आई परसेंटेज की वो आई 600, 485, और यहां मैं डालूंगा 80.83, 80.83, और यहां पर ये परसेंटेज ले लेगा विदाउट एनी एरर। तो मेक श्योर, अगर देखो अगर आपका पहले ही राउंड ऑफ होके आ रहा है वैल्यू तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल एज इट इज अपन वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मुझे राउंड ऑफ करना पड़ रहा है तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है? तो मेक श्योर ये वाला स्टेप जो है सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आती है, तो यहाँ अपन लोग दिक्कत कोई भी मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट स्टेप, 12th के मार्क्स अपन यहाँ पे फिल आउट करेंगे। 12th में भी मैं जल्दी जल्दी कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका बोर्ड है यहाँ से सारे रिस्पेक्टिव बोर्ड्स अपने निकल आएंगे। मैं CBSE ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मंथ में जनरली आपके मार्कशीट में जो लिखा होगा वही वाला लिखिएगा, 2015 यहाँ आ जाएगा। डिसिप्लिन आपका क्या है? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अदर्स, तो साइंस ही कर देता हूँ मैं इसको। मैक्सिमम मार्क्स 500, मैक्सिमम और टोटल मार्क्स में कंफ्यूज मत होइएगा। 450 एंड एग्रीगेट विद बी 90, ठीक है? यहाँ से मैंने फिल आउट कर दिया। बैचलर्स डिग्री, अब बैचलर्स डिग्री के अंदर हो सकता है कई सारे प्री फाइनल ईयर में हो, कुछ कई सारे फाइनल ईयर में हो, काफी सारे लोग हो सकते हैं पास आउट भी हो, तो उसको अपने अकॉर्डिंग ही फिल करना है। आर यू इन अ फाइनल ईयर? अगर यस तो यस, अदरवाइज नो। हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर्स डिग्री? अगर यस है तो यस, अदरवाइज नो। सो आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स डिग्री। यहाँ पर मैं ड्यूरेशन 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, तो मेरा बैचलर्स डिग्री की ड्यूरेशन रही थी 4 इयर्स की। मार्क्स परसेंटेज मुझे डालने हैं, तो परसेंटेज लेट्स से इतना परसेंटेज था मेरा, स्टेट यूनिवर्सिटी मान लो। इसमें मतलब अपने हिसाब से अपने को फिल करना है। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से फिल कर सकता हूँ इसको। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ से अपन अपना यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारा अपना यूनिवर्सिटी का नाम है, तो यहाँ पर मैं टू बी ऑन सेफर साइड में एक जल्दी से सिलेक्ट होने वाला यूनिवर्सिटी नेम ना, तो यूनिवर्सिटी नेम में लेट्स सपोज
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ कॉलेज IIT कानपुर ही फिल कर लेते हैं। मैं इस कॉलेज से नहीं हूँ तो प्लीज़ डोंट मेक एनी नॉइज। ग्रेजुएशन ये सिर्फ एक डेमो फॉर्म है जो कि मैं आपको फिल करके बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपना स्ट्रीम चूज किया, जो भी मेरा स्ट्रीम था, बीटेक। डिसिप्लिन लेट्स से अभी मुझे कंप्यूटर साइंस दिखा था, कंप्यूटर साइंस। कमेंसमेंट कब से शुरू हुआ था? 2015 मैंने वो दिखाया था, तो जुलाई से मेरा शुरू हो गया था। कब? जुलाई 15 से। कंप्लीशन हो गया था 19 में, तो मैं वही डाल दूंगा, जुलाई 2019। ओके, डू यू हैव और आर अंडरगोइंग ड्यूअल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स? तो नहीं, नो। अगर मेरे केस में नो है, अगर आपके केस में यस होता है तो यस कर दीजिएगा। ड्यूअल डिग्री मींस मास्टर्स, बैचलर्स के साथ अपनी मास्टर्स भी 1 साल का कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कि अगर अपन इंजीनियरिंग की बात करें तो 4 इयर्स बेसिक बीटेक करने में लगते हैं एंड 2 इयर्स का उसके बाद एमटेक होता है। तो अगर आप ड्यूअल डिग्री कोर्स ले लेते हैं तो 4+1 5 इयर्स में आपका ड्यूअल कोर्स हो जाता है, मतलब बैचलर्स के साथ मास्टर्स भी हो जाता है। ओके, अगर आपके पास एक से ज्यादा बैचलर डिग्री है तो यहाँ पे टिक करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। मास्टर्स डिग्री अगर है आपके पास ऑलरेडी तो उसमें आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। जितने भी लोग सीए हैं या फिर किसी के पास प्रोफेशनल सीए डिग्री प्रोफेशनल डिग्री में आती है, तो अगर आपके पास है कुछ तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रोफेशनल डिग्री, जैसे कि CA CS IC WA। तो अगर इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पे यस करके डिटेल्स अपनी फिल इन कर सकते हैं कि इन प्रोग्रेस है, कंप्लीटेड है, जो भी चीजें हैं सारी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास क्योंकि कुछ भी नहीं है ऐसा, तो मैं दोनों ही चीजें नो करके आगे बढ़ूंगा। मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी। अब इसके बाद एक बार मैंने और क्रॉस चेक कर लिया अपनी सारी डिटेल्स, आई एम वेरीफाइड कि हाँ मैंने सारी डिटेल्स सही भरी हुई हैं, आई हैव वेरीफाइड दैट। तो अब मैं सेव एंड कंटिन्यू। प्लीज सिलेक्ट 10th डिसिप्लिन। अब देखिए कोई भी अगर फील्ड रह जाएगी तो ये अपने आप बता देगा अपने को। तो वेयर इज CBSE, ठीक है। यहां पर अब मैं आ जाऊंगा सेव एंड कंटिन्यू। ओके, अब ये कॉलम आया अपना वर्क एक्सपीरियंस का। तो अगर आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे जो भी आपकी फील्ड आती है उसके अकॉर्डिंगली। अगर नहीं आती है, ब्रेक एंड एक्सपीरियंस बोले तो जैसे मैंने एक कंपनी में जॉब करी 2 साल, उसके बाद मैंने 6 महीने मैंने जॉब छोड़ी या फिर मुझे फायर कर दिया, मान लीजिए मेरे उस जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद मैं 6 महीने खाली बैठा हुआ था, फिर मैंने 6 महीने बाद दूसरी जॉब ज्वाइन करी, क्योंकि इसके अंदर प्रूफ्स लगते हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ट्राई करना कि कुछ भी खराब या गलत चीज आप इसमें फिल आउट ना करो। तो अगर मान लीजिए मेरा 6 महीने का ब्रेक आया है तो मैं ब्रेक इन एक्सपीरियंस यहाँ पर फिल करूंगा 6 मंथ्स का। अगर मेरे पास ज्यादा आता है तो मैं ज्यादा करूँ, अगर नहीं है तो नो इश्यूज। मतलब मैंने 15 से छोड़ी है यहाँ पर और 16 से मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, तो वो मैं डायरेक्टली वहां पे फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपका टोटल एक्सपीरियंस इन डेज आ जाएगा, फिल आउट कर देंगे अपन, सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। अगर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। और एक चीज ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको जो अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखाना, क्योंकि कैट हमारा नवंबर में होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप नवंबर या फिर मेरा GDPI जो होगा वो जनवरी या फेब में होगा तो मैं फेब तक का, क्योंकि अभी तो काम करूंगा ही मैं, तो फेब तक का मैं दिखाऊंगा। नहीं, ऐसी चीजें नहीं करनी। टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको 31 जुलाई तक का ही दिखाना है। 31 जुलाई के आगे का वर्क एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर नहीं डालना है। जैसे अगस्त चल रहा है तो अगस्त का आप ये वाले 4-5 दिन का वर्क एक्सपीरियंस नहीं डालेंगे। 31 जुलाई स्टैंडर्ड डेट सेट करी हुई, 31 जुलाई तक का ही वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो यहाँ पर आप ये चीजें फिल इन कर लेंगे। अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप खाली छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। इसमें अब मैं एक चीज थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि काफी लोगों को ये डाउट होता है कि सर मैंने इंटर्नशिप करी हुई है तो क्या मैं उसको वर्क एक्सपीरियंस में डाल सकता हूँ? नहीं, वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ना ही इंटर्नशिप आती है आपकी, ना ही आर्टिकलशिप आती है। वर्क एक्सपीरियंस बोले तो आपने कॉलेज खत्म किया या कॉलेज से पहले मान लीजिए आपके 12th के बाद आपने जॉब करनी शुरू कर दी थी, 2-3 साल जॉब करी, फिर तो आपने ग्रेजुएशन करी, दैट इज ओके, क्योंकि आपके पास उसका प्रूफ होगा। लेकिन वर्क एक्सपीरियंस मेनली जो काउंट होता है वो अपना फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट होता है, ना ही इंटर्नशिप, ना ही आपकी आर्टिकलशिप। क्योंकि सीए के अंदर अगर हम बात करें तो 2.5 साल की अपने को आर्टिकलशिप करनी होती है, तो दैट इज नॉट काउंटेड एज वर्क
एक्सपीरियंस। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आर्टिकलशिप में 2.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखा दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक कॉलेज अपनी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, वो उसको बिल्कुल भी काउंट मत करिएगा। यहाँ पर भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है पार्ट टाइम या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस, ये सब लोग इन्होंने इस साल से प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस भी हटा दिया है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन ही वर्क एक्सपीरियंस अपना काउंट होगा। ओके, सो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। अब क्योंकि मेरे पास कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। अब आता है इस फॉर्म का फोर्थ पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल्दो इंपॉर्टेंट वर्क एक्सपीरियंस भी, एकेडमिक्स भी है, लेकिन प्रोग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कौन कौन से प्रोग्राम्स फिल इन करूं? अब आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है मेरे पास। अहमदाबाद का पीजीपी लिखा हुआ है, पीजीपी एफएबीएम है, पीएचडी है, एमबीए है, फिर ईएमबीए आ गया, बिजनेस एनालिटिक्स आ गया। तो अब मैं कौन कौन से, बहुत सारे कोर्सेज हैं, 40+ कोर्सेज हैं। तो अब मुझे अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो इस चीज के लिए मैंने एक पूरी पीडीएफ बनाई हुई है, जो कि है ये। इसके अंदर सारी डिटेल्स मैंने फिल इन करी हुई है कि आई एम अहमदाबाद पीजीपी। देखो, एक जनरल एक आइडिया अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कुछ कुछ कोर्सेज ही भरने हैं जिसमें वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। जैसे कि पीजीपी कोर्स हो गया अपना, पीजीपी हुआ। अगर एमबीए लिखा, पीजीपी लिखा है किसी भी कॉलेज के आगे या फिर एमबीए लिखा हुआ है, तो बिना सोचे समझे उसको तो टिक करना ही करना है, क्योंकि यही फुल टाइम कोर्स होता है अपना नॉर्मल। ठीक है, इसके अलावा जैसे एफएबीएम आ गया, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, ये कुछ ही कॉलेजेस हैं। जैसे IIM अहमदाबाद के पास है, IIM लखनऊ कराता है, यही कुछ 2-3 IIMs हैं जो कि एफएबीएम, फूड एंड एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट कराते हैं। एफएबीएम कह लो या फिर एबीएम कह लो, बात एक ही है। तो इसके अगेंस्ट रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट चाहिए, या फिर अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो एग्रीकल्चरल डिसिप्लिन का अपने को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास रोटेट करेगा। ओके, जिस प्रोग्राम के आगे भी ई लग जाए तो वो या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा, बोले तो ई लर्निंग मोड, मतलब ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसकी, या फिर अगर ई कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूटिव कोर्स हो गया। एग्जीक्यूटिव कोर्स के अंदर आपको मिनिमम 3 to 4 ईयर्स, 3+ ईयर्स का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपन IIM अहमदाबाद का ई पीजीपी कोर्स अगर हम देखें तो इसमें 3 ईयर्स से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस इतना है तभी फिल करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। पीएचडी प्रोग्राम 5 साल का कोर्स है। अब यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन भी लिखी हुई है कि 2 साल का प्रोग्राम अपना नॉर्मल पीजीपी, एफएबीएम भी 2 साल का है, ईपीजीपी 2 साल का है, पीएचडी 5 साल का, क्योंकि डॉक्टरेट प्रोग्राम होता है ये। तो इसको भी अपन फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर या तो मेरे पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए विद या फिर बीटेक या फिर 4 ईयर डिग्री विद 6.5 सीजीपीए और इक्विवेलेंट। मिनिमम 6.5 तो बनता ही बनता है, ये लोग चाहते ही चाहते हैं इतना, राइट। तो ये सारी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस होल लिस्ट, सिलेक्ट द कोर्सेज दैट बेस्ट सूट्स योर प्रोफाइल। ठीक है, जो भी कॉलेजेस अपने काम के ना हो, जो भी प्रोग्राम्स अपने काम के ना हो, वो बिल्कुल भी फिल नहीं करिएगा। देखो, इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है कि अगर मुझे मान लीजिए नहीं आइडिया है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स भरने हैं तो मैं सारे प्रोग्राम्स भर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत कहाँ हो सकती है? देखो, वही है 100% श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन इन केस सामने आपके इंटरव्यूअर्स ने देख लिया कि यार आपने तो सारी चीजें ही फिल कर रखी थी, तो आपको पता नहीं था। जब आपको यही नहीं पता कि कॉलेज कोर्सेज आपको कौन कौन से आपकी प्रोफाइल से मैच कर रहे हैं, तो फिर आप आगे कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे? तो ये सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, बट टू बी ऑन सेफर साइड सिर्फ वही प्रोग्राम्स फिल करो जो अपन जिसके लिए एलिजिबल हो। ओके, उन्हीं से कॉल आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल अपन ये सारे की सारे कॉलेजेस प्रोग्राम्स फिल कर देंगे। सारे IIMs हैं, 20 IIMs है अपने पास, 20 IIMs आते हैं, तो सारे IIMs के प्रोग्राम्स इसके अंदर भरे हुए हैं। और इंटरव्यू के लिए आपको सिटी प्रेफर करनी पड़ेगी इसके अंदर, तो यहाँ पर टिक करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए सिटी देख लीजिएगा। अच्छा, वन थिंग इज कि जो भी सिटी सिलेक्ट करो, थोड़ा सा देखना या तो आसपास ही हो या फिर सेम सिटी ही बुक करना फर्स्ट प्रेफरेंस में, और सेकंड प्रेफरेंस में सब में सेम फिल करना। व्हाई आई एम सेइंग दैट? वो इसलिए
वरना अगर क्या हुआ, अपने पास अहमदाबाद से भी कॉल आया, मान लो मैंने अहमदाबाद का इंटरव्यू फर्स्ट सिटी रख दिया अहमदाबाद ही, और बैंगलोर की फर्स्ट सिटी रख दी मैंने बैंगलोर, और मान लो मेरा दोनों का ही इंटरव्यू मेरा आ गया, मेरी बाय गॉड्स ग्रेस बाय माय हार्ड वर्क मेरे पास दोनों जगह से कॉल आ गया। दोनों जगह से कॉल आने के बाद मेरा इंटरव्यू चांस की बात लाइन अप हो गया, एक मेरा आज है और एक मेरा कल है इंटरव्यू, तो ट्रेवल टाइम आपका खराब हो जाएगा, फिर आपको कोई ना कोई इंटरव्यू मिस आउट करना ही करना पड़ेगा क्योंकि काफी दूर है, राइट। तो ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है, तो इसीलिए ट्राई करना कि इंटरव्यू सिटी की प्रेफरेंसेस अपने हिसाब से ही भरो। आसपास के एरिया में अगर आती है तो आसपास में ही भरो, ऐसा नहीं कि मैं अहमदाबाद जाके मैं इंटरव्यू दूंगा ना। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली ही फिल करिए, कहीं और रहते हैं तो कहीं और फिल करिए। ओके, तो यहाँ से आप फिल आउट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आगे बढ़ा देता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर दिया, जरूरी नहीं सारे सिलेक्ट करो, एक दो भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपका आ जाता है प्रेफर्ड सिटी। लास्ट ईयर इन्होंने 4 प्रेफर्ड सिटी करी थी, लास्ट ईयर सिर्फ 3 ही प्रेफर्ड सिटी मांगते थे, लेकिन अब इन्होंने 6 प्रेफर्ड सिटी मांग ली हैं, ऑल फिलिंग ऑल 6 आर मैंडेटरी। तो अपन यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपनी रिसेंट जो भी है आसपास की सिटी वो सिलेक्ट कर लेंगे, वहां से अपन सारी की सारी सिटी सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे, और मेरा नेक्स्ट में जो रिडायरेक्ट होगा वो होगा, देख लेते हैं क्या आता है। मैं अभी कुछ भी ऐसे ही फिल कर दे रहा हूं। और ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी सिटीज़ आप, मतलब कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाएगी या सेकंड प्रेफरेंस ही मिल जाएगी तो मैं आगे की छोड़ देता हूँ, नहीं, क्योंकि इस बार 3 स्लॉट्स में हो रहा, कोविड कंडीशंस की वजह से ही इन्होंने 6 सिटीज़ प्रेफरेंस सिटीज़ मांगी हैं। तो आसपास की ही सिटीज़ रखिएगा, ये नहीं कि पहली मैंने रख दी जम्मू और चौथी या पांचवी मैंने सिटी रख दी गोवा की, चलो कोई नहीं, अगर पेपर पड़ा तो मैं गोवा जाके पेपर दे के आऊँगा, नहीं, आसपास की ही रखिएगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या कंडीशन हो, क्या ट्रेवल कंडीशन हो अपने को नहीं पता। तो टू बी ऑन सेफर साइड ऐसा कि मैं या तो अपनी पर्सनल व्हीकल से भी जा सकूं या फिर पब्लिक ट्रांस घर वाले मुझे छोड़ के आ सकें, कुछ भी ऐसा ही कन्वीनियंट एक मेथड रखिएगा और आसपास की सिटीज ही फिल करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर मेरी डिटेल्स आ गई, मुझे एप्लीकेशन फी, क्योंकि मैंने जनरल कैटेगरी फिल करी थी तो मुझे 2200 पे करना होगा। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिटेल्स दी हुई है कि आपका किस पेमेंट से, किस पेमेंट मेथड से अगर आप करते हैं तो कितना क्या पैसा ट्रांजैक्शन में आपका कटेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करके बिल डेस्क से करेंगे, मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अगर आप करते हैं तो बिल डेस्क कर दीजिएगा, और पे यू से भी आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैप्चर डालेंगे, आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा वो कहाँ पर, पेमेंट गेटवे पर, डिटेल्स फिल इन करेंगे एंड फॉर्म आपका फिल आउट हो जाएगा। तो ये था हमारा 6 स्टेप प्रोसेस ऑफ फिलिंग अ कैट 2021 फॉर्म। आई होप इसमें अपनी चीजें क्लैरिफाई हो गई होंगी। मैंने पहले से ही इसमें ट्राई आउट किया है कि आपके जो फ्यूचर डाउट्स आते हैं वो सारे क्लियर करने का। जैसे सबसे पहला मेन डाउट जो आता है वो एकेडमिक्स फिल करते टाइम आता है, यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम, तो वो क्लियर आउट हो गया होगा। सीजीपीए को मैं परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूंगा, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय फैक्टर ऑफ 9.5। उसके बाद अगर मेरा पॉइंट्स में आता है तो मैं मुझे उसे नियर अबाउट इंटीजर में राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करने के बाद मैं उसकी परसेंटेज निकालूंगा एंड देन वो फिल करूंगा। अदरवाइज आपका जो मैंने एरर दिखाया था कि अगर मैं परसेंटेज 75 करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर प्लीज एंटर योर करेक्ट परसेंटेज दिखा देगा। काफी लोगों को ये दिक्कत आती है कि मैक्सिमम मार्क्स में वो टोटल मार्क्स भर देते हैं एंड टोटल मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स भर देते हैं, तो मेक श्योर ये भी गलती ना हो। बाकी सारी चीजें बहुत ही ईजी हैं, वर्क एक्सपीरियंस में भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ब्रेक आता है तो ब्रेक उसमें फिल करिएगा, उसको आपको जस्टिफाई करना होगा 6 महीने का ब्रेक है, 1 साल का ब्रेक क्यों था, तो दैट कैन बी इजीली जस्टिफाइड, राइट। प्रोग्राम्स की बात करें, प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके पूरा चेक कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू माई प्रोफाइल विच ऑल प्रोग्राम्स आर बेस्ट सूटेड फॉर मी, मैं वही प्रोग्राम्स फिल आउट करूंगा एंड देन cities 6 preferences डाल के I'll move on to the payment gateway. So guys,
ये सारी चीजें थी जो अपने को इसके अंदर देखनी थी। कैट का फॉर्म इजी फॉर्म है, बट क्योंकि आप फर्स्ट टाइम भरेंगे तो मे बी यू माइट बी फेस सम चैलेंजेस, तो उन सब को क्लियर आउट करने के लिए अपन ने ये सेशन रखा था। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो अब कैट का फॉर्म आ ही चुका है, अपन ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस वीडियो को देखने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर देंगे। सिर्फ अपने पास क्या टाइम बचेगा प्रिपरेशन का। अच्छा, वन मोर थिंग, काफी लोगों को ये लगता है कि यार अपन तो लास्ट मिनट गए हैं, तो मैं तो सिर्फ सबसे लास्ट में, जब कैट का आखिरी दिन चल रहा होगा, 15 सितंबर लास्ट डेट है, तो मैं 14 को फिल करूंगा। कर सकते हो ऐसा, हो सकता है किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक ना हो, या कोई भी इशू आ सकता है किसी के साथ, राइट। लेकिन अगर सिर्फ आप भौकाल के चक्कर में अगर लास्ट तक रोकते हो तो मत करिएगा। दैट मीन्स कि यू आर नॉट सीरियस। जितना जल्दी फॉर्म हो सकता है फिल करके खत्म करो, क्योंकि आपकी प्रेफर्ड सिटी जो होती है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के हिसाब से ही मिलती है। तो जितना जल्दी फॉर्म भर दोगे उतनी जल्दी अपने को चांसेस रहेंगे कि 1 2 3 प्रेफरेंसेस में से ही मुझे सिटी मिल जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं लास्ट तक डिले करता हूं तो सोचो, अभी अगस्त फिर सितंबर, मेरा 1.5 महीना है फॉर्म खत्म होने में। 1.5 महीने तक मेरा सिर्फ और सिर्फ यही टेंशन में रहूंगा कि यार अभी फॉर्म भरना है, अभी फॉर्म भरना है, अभी फॉर्म भरना है। तो जब इस टेंशन में रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे तो कैट में परसेंटाइल कैसे आएगी? परसेंटाइल नहीं आएगी तो IIM कैसे जाओगे? डिस्क्रिप्शन लिंक में से फाइल डाउनलोड करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मेक श्योर थोड़ा सा जल्दी आप इसको फिल आउट कर लें, ताकि पूरा फोकस अपन कहां रख सकें? अपनी कैट प्रिपरेशन पर। बिलीव मी, 3 months 4 months आर सफिशिएंट। अभी अपने पास 114 डेज नियर अबाउट हैं। 114 डेज में इफ यू वर्क हार्ड, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल। और परसेंटाइल एक बार आ जाए, प्रोफाइल अपनी स्ट्रांग है ही नहीं है तो अपन कर लेंगे, और उसके बाद कॉल कन्वर्ट करना विल बी एज इजी एज पाई। तो मेक श्योर पहले स्कोर लेके आओ। अगर 10th में खराब मार्क्स हैं आपके, 12th में खराब मार्क्स हैं, अभी दिमाग ये चकरा रहा है कि यार मेरे तो इतने कम परसेंटेज है, क्योंकि जब फॉर्म फिल करोगे तो रिवाइंड होंगी सारी चीजें कि मैंने कैट की प्रिपरेशन में आया, मैं कूद तो गया हूँ, लेकिन मेरे 10th में तो इतने हैं, मेरे 12th में तो इतने, अब क्या होगा मेरे पास तो वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, मेरे पास तो गैप ईयर भी है, तो मुझे तो कॉल आएगा ही नहीं यार। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये सब नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल के अलग रख देना। सिलेक्शन क्राइटेरिया 50% उन्होंने रखा हुआ है, ऑल्दो कॉल्स आने में डिफिकल्टी रहेगी, लेकिन वही चीज है, जितनी ज्यादा आप परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर करो ना। आपके हाथ में अभी क्या है? स्कोर लेके आना। तो मेक श्योर 99.99 का टारगेट लेके चले थे, 99.5 की, यार जो मेरे 0.5 परसेंटाइल जो मैं एक्स्ट्रा एड ऑन करूंगा वो मेरा थोड़ा बहुत तो कवर अप कर लेगी 10th 12th, राइट। तो इन सब चीजों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने को आगे बढ़ना है। सो आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेरी अगर आती है while filling the form, just type your query in the comment section. ओके, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा। आई विल रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। ओके, और बस आज के लिए फिर इतना ही करते हैं अपन। अब नेक्स्ट जो वीडियो अपन बनाएंगे वो बनाएंगे एनमैट का फॉर्म, क्योंकि एनमैट का भी फॉर्म आ गया। एनमैट में काफी दिक्कत आती है क्या, कि रीटेक क्या होता है, रीशेड्यूलिंग क्या होती है, और क्या मुझे हर बार पैसे भरने पड़ेंगे फॉर्म के, कॉलेजेस के। तो ये सारी चीजें अपन पॉइंट आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फिल एनमैट 2021 फॉर्म। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, and all the best for your CAT preparation. All the best, guys.